जहाँ पर एक दूसरे के दर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर ऐसे मधुर वचन श्रवण करके हमें और उत्साह मिल रहा है मानवता की डगर पर टिके रहने के लिए, भक्ति के मार्ग पर बने रहने के लिए। तो इस तरह के प्रेरणादायक वचन हमें श्रवण करने को ये मिल रहे हैं। संत तुकाराम जी की वाणी हो या संत नामदेव जी की वाणी हो या सामर्थ गुरु रामदास जी की वाणी हो या फिर कबीर जी और रविदास जी की वाणी हो या फिर वलियों गुरु पीर पैगंबरों के वचनों को यहाँ पर दोहराया गया हो, ये सब के सब वाकई ही एक महत्वपूर्ण है। संसार का भला होगा अगर इन्हीं वचनों के ऊपर वो कदम उठाकर फूल चढ़ाए जाएंगे। अक्सर कह दिया जाता है कि फूल चढ़ा दिए हैं, तो वो वचनों के ऊपर फूल चढ़ाने का मतलब कोई वाह नहीं हुआ करता है। वचनों के ऊपर फूल चढ़ाने का मतलब है कि जो करने के लिए उन्होंने कहा है, जो महत्वपूर्ण पहलू है जीवन के, उसको अपनाने और उस पर चलने को ही फूल चढ़ाना कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज भी कितने सुंदर वचन कितनी ही भाषाओं में हमें श्रवण करने को मिले हैं। और अभी अभी आपने देखा हिज एक्सीलेंसी काउंसिल जनरल ऑफ कनाडा मिस्टर जॉन रीव्स। So I am very happy. I am very happy to have him here and listen to the words of wisdom and also the love which he felt by seeing this mammoth gathering belonging to all fields, from various fields of life, belonging to Maharashtra, belonging to Mumbai, belonging to other states, and even international representation, and also there is representation from Canada, the beautiful country. So we also, as we mentioned yesterday, a large contingent of chiropractor doctors and doctors working in various fields. So that also gives us so much encouragement that so much sacrifice is being made to relieve others of pain. So we all are human beings, we are children of God. There's only one common Father, the universal Father. We name it as God or Allah or Ishwar or Akal Purakh. We may have so many names, but the entity remains the same. So we are all the members of the one common family, and whose Father is this universal Father, God Almighty. So there is no space for hating each other. If we are truly the children of God, then why should we hate each other? Will the father be happy if the father sees children fighting each other? Never. Rather, he will be in pain when he sees the children fighting each other, killing each other, seeing so many brutalities. So that's not the way to make Lord God Almighty happy, as we are seeing that people have certain beliefs that they are doing the work of God by these brutalities, by butchering people, taking lives of innocents, infants. So this is definitely not the way to appease God Almighty, the universal Father. Definitely, as mentioned in scriptures, and all the saints and sages since time immemorial have always mentioned that God is happy when we shower love, when we have compassion in our hearts, and we always come forward to serve others,
as you are seeing so much service taking place in these grounds, in this small tented city, a township of tents, where so many saints are residing, and at the same time, there are so many volunteers doing this selfless service. And selfless service is of most importance. People mostly are full of selfishness, but selfless service is paramount. It is on the higher plane. And that's what we are seeing, whether they are chiropractors, doctors, or other team of doctors. There are Sevadal Jawans cleaning the spaces, and they are serving the community langar, and they are working for safety of life and things. And also, there are so many aspects which we are seeing around. And as has been said, and I quote that, a man is truly alive if he is doing for others, and comparing it another step forward, and that is more important, that serving others, working for others, knowing that he is not able to pay back, knowing that. So that is the true selfless feeling. So that's what we are seeing all around here. तो साथ संगत कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से ये सेवाएं की जा रही हैं, जहाँ पर अपना आप समर्पित किया जा रहा है, जहाँ पर कुछ भी और इच्छा रखे बगैर दूसरों की पीड़ा हरने के लिए ये योगदान दिए जा रहे हैं। वरना संसार में खुदगर्जियाँ प्रबल हैं, हर कोई अपनी गर्ज पूरे करने में लगा हुआ है, और उस गर्ज को पूरा करने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अपनी गर्ज पूरी हो जानी चाहिए, उसको यही मतलब होता है। चाहे किसी की जान लेनी पड़े, चाहे किसी को दबाना पड़े, चाहे किसी को एक्सप्लॉइट करना पड़े, चाहे किसी का शोषण करना पड़े। तो इस प्रकार से इंसान इस गर्ज को, खुदगर्जियों को पूरा करने के लिए ये किसी हद तक जा सकता है, और वो हद तक हर हदें पार करके जा रहा है। ये आज हम रोज मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, खबरों में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं दृश्य कि किस तरह से एक ऐसा मानसिक रोगी हो चुका है इंसान। हालांकि हर इंसान ऐसे नहीं है, बहुत से इंसान हैं बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं, सज्जन प्रवृत्ति वाले हैं, मेल मिलाप में यकीन रखते हैं, तो वो भी हैं इसी संसार में, इसी धरा, इसी धरती पे। लेकिन जो विपरीत अवस्था वाले हैं वो सबसे ज्यादा हानिकारक साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा वो सारे ही वातावरण को एक दुखद बनाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये खुदगर्जियां, ये लालसाएं, ये इंसान में कितनी प्रबल हो चुकी हैं। लोभ लालच में कितना युक्त लालसाएं, तृष्णाएं, ये तो उठती ही रहती हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लाइक द वेव्स इन द ओशन। और किसी शायर ने सुंदर शब्दों में कहा है कि अजीब सा रिश्ता है मेरा और ख्वाहिशों के दरमियान, वो मुझे जीने नहीं देती, मैं उन्हें मरने नहीं देता। कि ख्वाहिशें मुझे जीने नहीं देती, एक उठती है उसको दबाता हूं, दूसरी उठ देती है, उसको दबाता हूं, तीसरी उठ जाती है, तो वो मुझे जीने नहीं देती हैं ख्वाहिशें।
और मैं उसे मरने नहीं देता हूँ, मैं उन डिज़ायर्स को मरने ही नहीं देता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी एक ख्वाहिश और डिज़ायर पावन उत्तम भी है, और वो है जो परमार्थ के ऊपर आधारित है, जो सत्संग परोपकार के ऊपर आधारित है, जो सेवा के ऊपर आधारित है। वो चाहत, वो चाहना, वो वास्तविकता में मुबारक है। उसका जिंदा रहना जरूरी है, उसको कभी मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमें सत्य से दूर ले जाती हैं, जो हमें इंसानियत के म्यार से नीचा कर देती हैं, तो उनका दमन करना ये बहुत लाजिम है, आनंद के लिए, ब्लिस के लिए। उसलिए महापुरुष संत जन इससे ऊपर उठकर सहज जीवन जीने की प्रेरणाएं देते आ रहे हैं, इस सत्य से नाता जोड़कर जीवन जीने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। एक सबर, संतोष, कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं, उसकी महत्ता का जिक्र करते हैं कि इस तरह से हमने इस निराकार दातार का शुक्राना करना है, एक सबर संतोष के साथ जीवन जीना है। तो जो कंटेंटमेंट से युक्त होता है वो भरा हुआ होता है, वो भरपूर होता है, और जिसमें ये नहीं होता है तो वो खाली खाली सा होता है। तो इसी प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने जहाँ पैगाम संदेश दिए हैं, वहाँ पर इंसान को ये जागरूक भी किया है कि तू अपने आप को ऐसा रूप दे दे, ऐसी मानसिकता, ऐसी अवस्था अपनी सोच को दे दे जो वास्तविकता में तेरे लिए एक भलाई का एक कारण और साधन बन सकती है। आज तक यही बनी है, जरिया और साधन उनके लिए, उनको महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उनका रुतबा बुलंद करने के लिए, जिनकी श्रद्धा से आज नाम लिए जाते हैं। यही वो अवस्था, यही भावनाएं थी उनकी, यही जागरूकता, यही अवेयरनेस और रियलाइजेशन उनको मिली थी, जिसके कारण वो पूज्य हो गए, उनका नाम ये रोशन हो गया। तो इस प्रकार से इस मालिक खालिक, इस परमात्मा ईश्वर से नाता जोड़े बगैर ना सबर संतोष मिलता है, ना ही वास्तविकता में हमें वो कंटेंटमेंट मिलती है, ना ही ये सेल्फलेसनेस की भावना ये हमारे मन में पैदा होती है, निष्काम भाव पैदा नहीं होते हैं। तो इसलिए ये महापुरुषों का, संतों का ये कथन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अभंग बोलते हैं, अगर हम श्लोक बोलते हैं, अगर हम कोई और वाणी का इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वास्तविकता में एक एक शब्द का महत्व है, एक एक वचन जो कहा गया है उसका महत्व है। वो यथार्थ वचन है, क्योंकि वो कल्याणकारी हैं, क्योंकि वो सत्य पे आधारित है। तो इसलिए इस सत्य परमात्मा ईश्वर, इस निराकार से नाता जोड़ने की ही प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि इसी की बदौलत तो चल रहा है सब कुछ। इंसानी है जो झूठे अभिमान में आ जाता है। ताकत तो इस मालिक खालिक की है। चाले है शरीरा कौण्याचे सच्चे, कि ये कौन सी ताकत से ये शरीर चल रहा है, कौन बोल भी तो हरि बिना, कि ये बोल भी रही है जुबान तो ये हरि की कृपा से बोल रही है। तो इस प्रकार से ये मालिक खालिक परमात्मा को महत्ता जीवन में जो देते हैं, वो खुद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वो वास्तविकता में उनका रुतबा बुलंद हो जाता है, क्योंकि वो इस मालिक को विशेषता देते हैं जीवन में, वो इसको प्रोमिनेंस देते हैं, इसलिए वो खुद प्रोमिनेंट हो गए। इस मालिक को प्रोमिनेंस देना का मतलब यही है कि जो इससे अपने मन का नाता तोड़ते नहीं हैं, जो कभी भी झूठा अभिमान करते नहीं हैं,
जो हर इंसान के प्रति सद्भावनाएं मन में रखते हैं, जो दूसरों के लिए काम आने के जज्बे रखते हैं, तो वो वास्तविकता में माने जाते हैं कि वो प्रभु के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। वो इससे नाता उन्होंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि उनके मन की भावनाएं सुंदर बनी हुई हैं। तो वो प्रमाणित होता है कि ये जुड़ा हुआ है, इस मालिक से जुड़ा हुआ है, ये गर्ज और खुदगर्जियों से ऊपर है, ये अहम और झूठे अभिमान से ऊपर है, ये लोभ और प्रलोभनों से ऊपर है, ये अपना आप कुर्बान कर देगा, दूसरे को दुख देने को तैयार ना होगा। ये वास्तविकता में ये हरि के साथ इस कदर ये घुला मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संतों की वाणी ये युगों युगों से इंसान को ये जागरूकता ये देती आई है। और आज भी कल भी इस समागम के अवसर पर महापुरुषों ने इसी पे आधारित ये वचन हमारे सामने रखे हैं। कवि सज्जनों ने भी कल भी आज भी इन पहलुओं के ऊपर भी रोशनी डाली है। जहां पर दीवारों की बात की गई है, दीवारों को गिराने की बात कही गई है, वहां पर पुलों की अहमियत के बारे में उजागर किया गया है, क्योंकि जो साधन बनते हैं, जैसे दास ने पीछे भी यही कहा कि वी शुड मेक ब्रिजेस एंड वी आवरसेल्व्स शुड आल्सो बिकम ब्रिजेस, कि हम खुद भी वो पुल बने ताकि एक दूसरे को मिलाने वाले बने। पुल क्या करता है? वो एक दूसरे को मिलाता है। तो इसी तरह से हम औरों के बीच में नज़दीकत बनाएं और हम खुद भी जरिया बने, हम खुद भी वो साधन बने, हम खुद भी वो ब्रिज पुल बने दूसरों को मिलाने के लिए। तो इस तरह से ये एक जागरूकता ये दी जा रही है। और वास्तविकता में यही कार्य युगों युगों से संतों महात्माओं का रहा है। क्या उन्होंने एक दूसरे को दूर किया था? उन्होंने अगर दूर किया था तो अज्ञानता से दूर किया था। उन्होंने अगर दूर किया था तो विपरीत भावनाओं से दूर किया था। अगर उन्होंने दूर किसी को किया था तो संकीर्णताओं से दूर किया था। उन्होंने इंसान और इंसान के बीच दूरियां पैदा नहीं की थी, इसलिए उन्होंने पुल बनाए भी और वो खुद पुल बने भी। इस कदर उन्होंने जोड़ा, इस कदर सारी मानवता को इस धागे में, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और उसमें एक धागा होता है, थ्रेड होता है, वो उनको जोड़ देता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने, भक्तों ने ये परमात्मा ईश्वर रूपी धागा, ये प्रेम रूपी धागा, इसी में ये तमाम फूलों को पिरो डाला। और वो फूल जब पिरो दिए गए धागे के सहारे, वो गले का हार बन गए, गले की शोभा बन गए। एक इस प्रकार से चारों तरफ के हालातों को सुंदर बनाने के लिए ऐसी ही देन की ज़रूरत है। और जो भी ऐसी देन देता है वो मुबारकबाद का पात्र हुआ करता है। वो माना जाता है, वो जागरूक है, माना जाता है कि वो महापुरुषों का सच्चे मायनों में पैरोकार है। उसी की बदौलत धर्म जिंदा रह सकता है। ऐसी अवस्था वालों के कारण ही धर्म की जय जयकार हो सकती है, वरना तो आज धर्म भी बदनाम होते चले जा रहे हैं। वो भी इसी कारण के इंसान शैतान और हैवान बनता चला जा रहा है। तो इसलिए महापुरुष संतजन आज भी हमें वही जागरूकता दे रहे थे कि वाकई हमने धर्म को जिंदा रखना है। और धर्म, सच्चा धर्म मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। इस इंसानियत और मानवता के धर्म को जिंदा रख लिया हमने, तो वास्तविकता में यही धर्म, ये हमेशा ही इसकी जय जयकार होती रहेगी। तो आओ साथ संगत, दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे कि सभी इंसानों को एहसास मिले, जिस डिल्यूजन में जी रहे हैं,
as I often mention, that self-delusion is like somebody pulling in his stomach while stepping on the weighing scale. Pulling in the stomach doesn't show you're less weight. You weigh as you were before. So that sort of self-delusion people often carry, that we are indeed religious persons because we perform such rites and rituals and dogmas. We go to pilgrimages and so many ways we adapt. So for that matter, we are true follower of God Almighty. We are true follower of the prophets and saints. So that is self-delusion if you are not following the path in the spirit and the way it is required. तो इस प्रकार से यही एक इंसान को जो खुशफहमी, जो गलत फहमियाँ बनी हुई हैं, जिसके कारण वो अपने आप को इस तरह से मान रहा है और उस जो पहले ही अस्तित्व नहीं है, जो पहले ही सत्य के ऊपर आधारित उसका ये परमार्थ और भक्ति और धार्मिक होने वाला वजूद ही नहीं है, जो बेस ही वो पूर्ण उस पे खरी नहीं उतर रही है, तो फिर बाकी उसके ऊपर खरा क्या उतरेगा। तो आओ साथ संगत, यही एक महापुरुष संत जनों के पैगाम है हर इंसान के लिए, जो सतयुग में दिया गया, जो त्रेता में दिया गया, जो द्वापर में दिया गया, जो कलयुग में दिया गया। किसी पैगंबर, किसी वली के द्वारा वो हर वचन, वो हर शिक्षा, वो हर इशारा जिस तरफ किया गया है, वाकई काश इंसान उस तरफ बढ़ चले और तज दे ये कदूरतें, तज दे ये वैर वास्ते, तज दे ये संकीर्णताएं और तज दे ये हिंसक प्रवृत्तियां और ऊपर उठ जाए इन झूठे अभिमानों से, ऊपर उठ जाए लोभ लालच से और सही मायनों में एक ऐसा बशिंदा बने, ऐसा इंसान बने जो वाकई ही एक दूसरे का हितैषी बन के जिए, सारे इंसानों को अपने परिवार का अंग मान के जिए। जैसे वो शायर का शेर ध्यान में आया है कि अजीब सी बस्ती में मेरा मकान है, जहाँ लोग झांकते ज़्यादा हैं, मिलते कम हैं। कि झांकते हैं, वो देखो वो क्या हो रहा है, वो देखो उसने वो ये बोला, वो बहू सास, वो देखो, बस झांकेंगे उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, लेकिन मिलेंगे नहीं, मिलजुल कर कुछ सुलह सफाई कराएंगे नहीं, मिलजुल कर कोई इस तरह से समीपता पैदा नहीं करेंगे, केवल झांकते हैं, तमाशे देखते हैं। तो इस प्रकार के नहीं, वो उनकी ज़रूरत है जो वास्तविकता में ऐसे अपने आप को शरीक कर देते हैं, जो दूसरों की बातों के ऊपर, जैसे आज भी शायद कल जिक्र हुआ कि लोग तो नमक उठाकर घूमते फिरते हैं, ज़रा सा जख्म तो दिखाई दे, बस वहीं पर उस नमक को फेंकने को तैयार है, उसकी पीड़ा को और बढ़ाने को तैयार है। कीजिए ना 10 में बैठ के आपस की बातचीत, पहुंचेगी 10,000 तक आपस की बातचीत। गॉसिप मॉन्गर्स, वही बात जो झांकते ज़्यादा हैं, जो इस प्रकार से केवल बातें ही करते हैं, अपना भूल ही जाते हैं कि हमारी क्या फितरत है, हम क्या करते हैं, हमारी क्या व्यवहार है हमारे, वो उसके कोई लेना देना नहीं, दूसरों को ही नापते तोलते रहते हैं और इस प्रकार से एक दूसरे की ही बात करते रहते हैं, दूसरों पे ही कीचड़ उछालते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में महापुरुषों ने तो जो पाठ पढ़ाया है वो यही पढ़ाया है कि आपस को ना सराहिए पर निंदिए नहीं कोई। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये हमें शिक्षाएं नाना प्रकार की हमारे ही जीवन को शोभा देने के लिए, हमारे ही जीवन के तमाम पहलुओं को सुंदर बनाने के लिए ये हमें प्रेरणा ये देते आए हैं
और आज भी ये प्रेरणाएं हमें मिल रही हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से जो निकाल देते हैं वो कुछ भी हासिल नहीं करते। अगर कोई सुन के उसको जुबान से दोहरा देता है, कुछ हद तक वो पहले वाले से तो बेहतर है, लेकिन वो भी मुकम्मलता नहीं है। मुकम्मलता उसमें है जो सुनकर उसको जज्ब कर लेता है, उसको अपना लेता है, उसको धारण कर लेता है और फिर उसी प्रकार का ये जीवन जी लेता है। उसी की ही महत्ता ये हुआ करती है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे, सभी को ऐसा सहज जीवन प्रदान करे, सभी की सहजता इस जीवन में ये बनी रहे। इस निराकार दातार को कर्ता मानते हुए इसी की रज़ा में जो सब्र संतोष की बात कही, इसी की रज़ा में रहते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। जीवन में नाना प्रकार के पड़ाव आते हैं, जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक ऐसी बैलेंस्ड लाइफ ये हमेशा जो जीना जानते हैं, वाकई ही उनकी एक अद्भुत शक्ति होती है, एक अद्भुत उनमें एक सामर्थ्य हुआ करती है। तो ये दोनों ही पहलू ये लगातार चलते चले जा रहे हैं। जहाँ प्यार का जिक्र हो रहा है, नफरत का हो रहा है, अभिमान का हो रहा है, तो एक निम्रता का हो रहा है, प्यार का हो रहा है तो नफरत का हो रहा है, मिलने का हो रहा है तो बिछड़ने का हो रहा है। यानी कि दोनों ही पहलू ये लगातार चलते चले आ रहे हैं। गर्मी है तो सर्दी भी है, नाना प्रकार के पहलू जब हम देखते हैं, दोनों ही रूप हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से ये महापुरुष भक्तजन भी उसी प्रकार से विचरण करते हैं। जैसे अभी हाल ही में जस्ट फ्यू वीक्स बैक from 27 December to 9th of January, I was in the Middle East, in Emirates, in Oman and Bahrain. And on 31st night, I was in Dubai Mall, along with other saints belonging to this congregation. And suddenly at 10:30, a fire erupted in Address Hotel. It was so visible because we were in the proximity, just close by is the Dubai Mall. We were having dinner in the open, and there was so much confusion going on, and everybody was so concerned and scared what will happen. And people had traveled thousands of miles to see the fireworks which happens on the Burj Khalifa, which has become an attraction globally. And there were so many apprehensions and assumptions that the fireworks, because of the hotel is burning, the inferno taking place, because of the inferno the fireworks won't take place, the event will be cancelled. But the government, the authorities, they went ahead with it. And the scenario was such that people standing near the mall, when they turned left side, they were seeing the inferno. And when they turned their head towards the right side, and the fireworks and the celebration of the New Year was taking place, people were dancing, joying, and they were congratulating each other, wishing well for each other. So at the same time, we were seeing both the aspects, the joy and the pain. Similarly is our life. It has dimensions, but those who keep their balance, they are stronger. And such strength we get by being one with God Almighty, living with higher values,
and always placing ourselves at the mercy of God Almighty. तो आओ साथ संगत इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाज़त चाहता है। साथ संगत जी धन्य।